کہ بچوں کی موجیں ختم، فائنل ایگزام کی تیاری شروع۔ آج سے تمام نجی اور سرکاری اسکول موسم سرما کی تعطیلات کے بعد کھل گئے۔ سردی کے باعث اسکولوں کے اوقات کار بھی تبدیل کر دیے گئے۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ وقت بہت کم ہے، امتحانات کی تیاری کے لیے بچوں کو اب سخت محنت کرنا پڑے گی۔ تفصیلات سامعہ سعید سے جانتے ہیں، بتائیے سامعہ۔ جی بالکل، میں اس وقت گورنمنٹ ماڈل گرلز ہائی اسکول میں موجود ہوں۔ آج موسم سرما کی تعطیلات جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں۔ بچے جو ہیں وہ ایک بار پھر سے تعلیمی اداروں کا رخ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کلاسز میں اسٹرینتھ جو ہے وہ آج کم دیکھی جا رہی ہے، اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بچے اپنے فرینڈ سے مل کر جو ہیں وہ بہت خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جو ہے وہ ایک بار پھر سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پر ٹیچر بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی میم بتائیے گا، بچوں کی موجیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، مگر سردی کی لہر ابھی بھی برقرار ہے، تو بچوں کو سردی سے بچاؤ کے لیے اسکول میں کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ہاں جی، ایک تو اسکول میں جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے اسکول ٹائمنگ کو تھوڑا لیٹ کیا ہے۔ 8:45 تک بچے اسکول آ سکتے ہیں، تو اس وقت تک مارننگ میں ذرا فوگ ہوتی ہے تو موسم بہتر ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا، ان کو ویدر کے حوالے سے تھوڑا ریلیکس کیا ہے کہ یہ اپنی کوئی کلرفل جیکٹس وغیرہ یونیفارم کے علاوہ بھی پہن سکتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو گرم رکھ سکیں۔ جی بالکل، ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ کچھ نرمی بھی کر دی گئی ہے۔ یونیفارم کے حوالے سے بھی جو ہے وہ نرمی کی گئی ہے۔ بچے کسی بھی کلر کا جو ہے وہ سویٹر جرسی پہن کر آ سکتے ہیں تاکہ سردی سے جو ہے وہ بچ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ صبح کے اوقات میں جو ہے وہ دھند کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اسکول کی ٹائمنگ بھی جو ہے وہ اس لحاظ سے تبدیل کر دی گئی ہے۔ اور بچوں کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ موسم سرما کی تعطیلات جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، پیپر سر پر ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ ٹیچرز بھی جو ہے وہ بچوں کو خوب تیاری کرواتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ جی آپ کا بہت شکریہ سامعہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اسکولوں میں خواتین اساتذہ کے لیے خصوصی واش رومز بنائے جائیں۔ خواتین ملازمین اور وزٹرز کے لیے الگ سے واش رومز بنائے جائیں۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ماتحت اور الائڈ ڈپارٹمنٹ کو ہدایات جاری کر دی۔ عاطف پرویز سے مزید جانتے ہیں، بتائیے عاطف۔ جی بالکل، محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے یہ نوٹیفکیشن اور ہدایات تمام ماتحت اور الائڈ ڈپارٹمنٹ کو بھجوائی گئی ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ خواتین ملازمین اور اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین وزٹ کے لیے کسی کام کے لیے بطور سائل کے طور پر آتی ہیں، ان کے لیے خصوصی واش روم جو بنائے جائیں۔ اس حوالے سے تمام بیسک ایجوکیشن اتھارٹیز کو ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ قائد اکیڈمی کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے، پروگرام مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن یونٹ کے سربراہ کو بھی کہا گیا ہے۔ اس کے ساتھ قائد اکیڈمی اور ٹیکسٹ بک بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر کو بھی یہ ہدایت دی گئی ہے۔ چلڈرن لائبریری کمپلیکس، ڈی پی آئی سیکنڈری ایلیمنٹری، ڈائریکٹر مانیٹرنگ، ڈائریکٹوریٹ آف ریلیجیس ایجوکیشن، اور اس کے ساتھ نیشنل میوزیم آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو کہا گیا ہے کہ فوری طور پر ان ہدایات پر عمل درآمد کروایا جائے اور رپورٹ جو ہے وہ محکمہ اسکول ایجوکیشن کو بھجوائی جائے، جس میں بتایا جائے کہ واش روم جو ہیں وہ بن سکیں، کیونکہ اس حوالے سے حکومت کو اور جو عالمی اداروں کی طرف سے بھی آبزرویشن آئی تھی کہ خواتین کے لیے جو سرکاری اداروں میں واش رومز موجود نہیں ہیں، اور اب یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ فوری طور پر جو ہے واش رومز بنائے جائے۔ جی آپ کا بہت شکریہ عاطف۔ بجلی چوری کی بڑھتی شرح کا معاملہ سنگین ہو گیا۔ ہائی لاسز والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 4 سے بڑھا کر 7 گھنٹے کر دیا گیا۔ لیسکو نے مختلف علاقوں میں 2 سے 7 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کا شیڈول نافذ کر دیا۔ شیڈول کے مطابق کمپنی میں 20% تک لائن لاسز پر لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی۔ فہد امین سے مزید جانتے ہیں، بتائیے فہد۔ جی بالکل، لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے انسداد بجلی چوری مہم تو شروع کی گئی ہے، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ بجلی چوری کی شرح میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور یہ جو ہے وہ معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ لیسکو نے جو ہے وہ ہائی لائن لاسز والے فیڈرز کی بنیاد پر جو ہے وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 4 سے بڑھا کر اب 7 گھنٹے تک کر دیا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ لیسکو نے ہائی لاسز والے علاقوں میں 7 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا شیڈول نافذ العمل بھی کر دیا ہے۔ لیسکو کے 2 سے لے کر جو ہے وہ 7 گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے لیسکو کی جانب سے۔ شیڈول کے مطابق کمپنی میں 20% تک لائن لاسز پر لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ نہیں کی جائے گی، تاہم 20% سے زائد لاسز والے فیڈرز پر جو ہے وہ 2 سے لے کر 7 گھنٹے تک جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ اس سے 30% تک 2 گھنٹے، 40% تک 3 سے 4 گھنٹے اور لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ جو ہے وہ بڑھایا گیا ہے۔ اسی طرح 50% تک لاسز والے فیڈرز پر 5 گھنٹے، 60% والے لاسز پر جو ہے وہ 6 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جبکہ 60% سے زائد لاسز والے فیڈرز پر جو ہے وہ 7 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ شروع کر دی گئی ہے۔ اوور بلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران لیسکو کے فیڈرز پر جو ہے وہ لاسز کی نشاندہی کی گئی تھی۔ لائن لاسز کی شرح سامنے آنے پر لیسکو کو مزید 3 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھانا پڑا ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔
लगते ही शहर लाहौर का मौसम खुशगवार हो गया। हवा में नमी का तनासुब 72%, हवा 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 221 रिकॉर्ड। कई इलाकों में आलूदगी की शरह 250 से तजावुज़ कर गई। मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से। बताइए सामिया। हाँ जी बिल्कुल, शहर लाहौर में इस वक्त सर्दी तो महसूस की जा रही है, लेकिन क्योंकि इस वक्त आसमान पर सूरज की किरणें जो हैं बिखरी हुई हैं, एक अच्छी खासी धूप जो है निकली हुई है, इस वजह से जो है मौसम इस वक्त खुशगवार महसूस किया जा रहा है। हल्की रफ्तार से जो है हवाएं भी चल रही हैं और धूप निकलने की वजह से जो है वो सर्दी की शिद्दत में जो है वो कमी देखी जा रही है और एक रिलीफ मिल रहा है शहरियों को और बड़ा ही खुशगवार दिन महसूस हो रहा है। और अगर दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि दिन भर में कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि इस वक्त हवा चलने की रफ्तार जो है वो 8 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की जा रही है और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 72% तक जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन साथ साथ क्योंकि मौसम तो बेहतर है, खुशगवार है, सर्दी ज़रूर है, लेकिन धूप निकलने से जो है खासा रिलीफ मिला है। लेकिन स्मोक का जो मसला है उससे इस वक्त शहरियों की जो है वो जान छूट नहीं सकी। मजमूई तौर पर सूरत हाल तो शहर लाहौर के कई मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इस वक्त भी जो है स्मोक का मसला जो है काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर रहा है और अगर इससे निपटने के लिए अभी से एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया गया तो आने वाले दिनों में जो है स्मोक का मसला इसी तरह जारी रहेगा और शहरियों को जो है वो सांस के और दीगर मसाइल जो कि सर्दी से भी हो सकते हैं और स्मोक की वजह से जो है वो ट्रिगर कर जाते हैं, ज़्यादा सामना रहेगा। तो इसी वजह से फ़िलहाल तो मौसम शहर का जो है वो खुशगवार है, अच्छी हवा भी चल रही है, धूप भी निकली है और सर्दी की वो शिद्दत महसूस नहीं की जा रही। लेकिन अलबत्ता जैसे जैसे रात होगी वैसे वैसे सर्दी की जो शिद्दत है उसमें इजाफा देखा जाएगा और स्मोक की शिद्दत में भी जो है वो इजाफा देखा जाएगा। जी, लाहौर को साफ सुथरा बनाने का मिशन 100 यूनियन काउंसिल्स में घर घर कूड़ा कलेक्शन का आगाज। फिरोजपुर रोड बैंक स्टॉप कमाहा गांव से मुहिम का आगाज किया गया। सेक्रेटरी बल्दियात शकील मियां का कहना था कि 154 में से 132 तहसीलें मुकम्मल आउटसोर्स कर दी गई हैं। मजीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। बताइए इमरान। देखिए, अब घर घर जो है वो चमकेगा। घर घर से कूड़ा उठाने के हवाले से आज जो सेक्रेटरी बल्दियात हैं उन्होंने आज यहाँ पर वज़ीर बल्दियात के साथ इफ्तिताह किया। लोडर रक्षों के हवाले से उनसे बात करेंगे कितने रक्षे हैं और शहर लाहौर में क्या मिशन है इनका, इनसे बात करेंगे। सर, ये क्या होने जा रहा है शहर लाहौर की सफाई के हवाले से? ये देखिए, ये LDMDMC का मॉडल है डोर टू डोर कलेक्शन का। हर यूसी के अंदर इन्होंने 240 घरों पे एक सैनिटरी वर्कर है और हर यूसी के अंदर उसके साइज़ के हिसाब से 10 से 12 लोडर रिक्शाज हैं जो कि डोर टू डोर घर घर जाके आपसे रोज़ का कूड़ा जो है वो उठाया करेंगे और उसको या तो किसी वेस्ट इंक्लोजर में या किसी अपने डंप ट्रक के अंदर वहाँ से डायरेक्ट मुंतकिल हो जाया करेगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको कहीं रोड साइड पे कूड़ा पड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा। सुबह भर में सुथरा पंजाब मुहिम चल रही है। 103 तहसीलों को आपने करना था, 154 तहसीलें हैं, तो क्या बाकी हो गई हैं और कैसा चल रहा है सुथरा पंजाब? देखिए, 154 में से 132 तहसीलें हमारी हो गई हैं और उनमें अब तक मैं आपको बताऊं अगर कि तकरीबन 33% HR की रिक्रूटमेंट हो चुकी है और तकरीबन 17-18% मशीनरी जो है वो आ चुकी है। क्योंकि कुछ तहसीलें सितंबर में आउटसोर्स हुई थी, कुछ अक्टूबर में हुई थी, कुछ नवंबर में हुई थी। तो जो सितंबर और अक्टूबर में आउटसोर्स हुई थी वो तकरीबन अब 70-80% तक अपनी डिप्लॉयमेंट उनकी हो गई है। जो नवंबर दिसंबर में हुई थी वो तकरीबन आप कह लें कि वो 30-40% है। वो एक महीने में वो भी 70-80% प्लस चली जाएंगी। और जहाँ जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स की जो मोबिलाइजेशन है, चाहे वो HR की है या मशीनरी की है, वो 80% प्लस होगी है। वहाँ पे अभी बड़ी अच्छी आपको फीडबैक भी आएगी, आप जाके चेक भी कर सकते हैं वहाँ की सफाई का मेयार में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। आपने शकील अहमद मियाँ की बात सुनी। इस वक्त कोशिश जारी है और इस वक्त कोशिश के साथ साथ 103 तहसीलों में से 103 तहसीलें की गई थी सुथरा पंजाब के हवाले से, जो कि अब 132 हो गई हैं। टोटल 154 तहसीलें हैं। सुथरा पंजाब के हवाले से आउटसोर्सिंग का अमल जारी है, मशीनरी आ चुकी है, हायरिंग हो रही है, HR आ चुकी है, डेवलपमेंट जारी है और इसके साथ साथ लाहौर शहर में 100 यूनियन काउंसिल में ये रक्षा जो है अब घर घर से कूड़ा उठाएगा और ये तवक्को की जा रही है कि लाहौर शहर में जो है लिटरिंग जो है वो ना हो सके। जी, आपका शुक्रिया इमरान। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी जानलेवा साबित। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 50,000 से ज़ायद अमवात होती हैं।
60,000 के करीब अफराद ट्रैफिक हादसात में मुस्तकिल माजूरी का शिकार होते हैं। तफसीलात मोहम्मद बिलाल से जानते हैं। बताइए बिलाल। जी बिल्कुल, मुल्क भर में जो रोड एक्सीडेंट है इनमें नुमायां तौर पर जो इजाफा है ये देखने में आ रहा है। जो आलमी इदारा सेहत है इसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर हर साल सालाना 50,000 जो अफराद हैं ये रोड एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, जबकि तकरीबन 50 से 60,000 अफराद मजदूरी का भी शिकार होते हैं। जब हमने भी देखा है कि अक्सर जो लोग हैं ये ट्रॉमा के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स रिपोर्ट होते हैं, जिसमें हेड इंजरीज, स्पाइन इंजरीज़ के बहुत ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं ये रिपोर्ट होते हैं। इस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज प्रोफेसर आसिफ बशीर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि जितनी बड़ी तादाद में पेशेंट सामने आ रहे हैं तो किस तरह आप पिंस में इनको कैटर कर रहे हैं और क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए? जी थैंक यू। देखिए, इस वक्त जो पंजाब इंस्टीट्यूट न्यूरो साइंसेज है ये दिस इज़ द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में, तो खैर है ही स्टैंड अलोन है, लेकिन 24/7 यहाँ पे हमारे केसेस चल रहे हैं। पेशेंट्स पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं और वी हैव लार्ज टीम्स जो इनको केटर करती हैं और माशाल्लाह सबका टाइमली इलाज भी हो रहा है। लेकिन इस सारा के बावजूद मेरा जो सबसे ज़्यादा हमारा जो स्ट्रेस होता है वो मैं प्रिवेंशन के ऊपर कहता हूँ कि अगर हम ये सारों को प्रिवेंट कर सकें, एंड ऑफ कोर्स पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इश्यूज़। अगर हमारी पॉपुलेशन द वे पाकिस्तान इज़ ग्रोइंग, मेरे ख्याल में वी आर गोइंग टू बी इन द टॉप 3 इन द वर्ल्ड बाय 2040 2050 तक। जो ट्रॉमा आपका हो रहा है उसको प्रिवेंट कैसे करना है, सिंपल मेजर्स हैं इनके। इसमें अगर आप मोटर बाइक एक्सीडेंट जो है ओवर 50% जो है मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स की वजह से होता है। सर मुझे ये बताइएगा कि पिंस के अंदर जब ऐसा पेशेंट आता है तो क्या SOPs हैं, किस तरह पेशेंट को लिया जाता है? सबसे पहले जी पेशेंट जो होता है वो कंबाइंड हमारा जो ट्रॉमा बे है वहाँ पे आता है, विच इज़ अ कंबाइंड लाहौर जनरल हॉस्पिटल एंड पिंस की। वहाँ पे डिसाइड किया जाता है, उसको ट्रियाज करके डिसाइड करते हैं कि भी इसको क्या इंजरी है। अगर उसको आइसोलेटेड हेड इंजरी है या स्पाइन इंजरी है तो उसको पिंस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और ऑपरेटिव है कि नॉन ऑपरेटिव है। बाय द वे ये एक मिसकंसेप्शन भी है, मेजॉरिटी जो हम ट्रामा डील कर रहे हैं वो नॉन ऑपरेटिव है, उसको सर्जरी के बगैर हम डील करते हैं। मतलब उनको वेंटिलेटर पे डाला जाता है और अगर उनका GCS से ख़ास लेवल से 8 से नीचे है तो उनकी मैनेजमेंट नॉन सर्जिकल वे पे की जाती है। अगर सर्जिकल हो तो 24 घंटे हमारे 2 थिएटर्स चल रहे होते हैं, वहाँ पे हमारी सीनियर रजिस्ट्रार इन हाउस होते हैं कर रहे, और अगर उनको स्टेबलाइज करके इलेक्टिवली भी या कोई ब्रेन एनरिज्म है या कोई ऐसा है तो उसकी एंडोवैस्कुलर कॉइलिंग वो उसकी भी सारी फैसिलिटीज़ इस वक्त हमने पंजाब हुकूमत ने यहाँ पे पिंस पे डेवलप की हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह कि आपने सुना कि जो डॉक्टर्स हैं वो तो अपनी मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन अब जो आम आवाम है उनको भी चाहिए कि जो ट्रैफिक के कवानीन बनाए गए हैं इस पर अमल दरामद करें ताकि अपनी भी जान बचाएं और अपने प्यारों की भी जान बचाएं। जी